हाँ सर, शुरू करिए। ऑन है, ऑन है। हेलो, हाँ Good evening, सर। sir. Yes. इवनिंग Good सर। evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ स्टूडेंट्स, तो कल आप लोग को जो है सर इफेक्ट ऑफ, पीछे जाइए, फेस नहीं दिख रहा है। हेलो, Yes. हाँ क्लियर, सर, अब फेस दिख रहा है। ठीक, क्लियर अब ठीक आवाज है। पहुंच रही है? Yes, ठीक। sir. हाँ ठीक है, ओके, Yes, sir. थैंक्स। तो कल आप लोग को डिस्कस किया गया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और फाइनली आफ्टर डेरिवेशन we have proved that the resistance of the conductor is directly proportional to the absolute temperature. It means resistance is directly proportional to the absolute temperature. Absolute temperature means due to increase the temperature, resistance of the conductor is increased. ठीक है, ये आपको पॉइंट बताया गया था। आज आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा कार्बन रेजिस्टर। आवाज आ रही है? ये Yes, sir. अपना माइक बंद कर लो आप लोग। कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर Sir दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? No, sir. Sir, नीचे लिखिए. कार्बन रेजिस्टर, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कार्बन रेजिस्टर है क्या? ये कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर is the component of electrical circuit offering certain opposition to flow of electric current into the circuit. आवाज पहुंच रही है? ठीक है। It is the component of electrical circuit. It is the component of electrical circuit it is the component of electrical circuit offering certain opposition to flow of electric current into the conductor. into the conductor. ये कार्बन रेजिस्टर का हमने डेफिनेशन नोट किया है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफरिंग सर्टेन, ये वर्ड आपको ध्यान देना, ऑफरिंग सर्टेन अपोजिशन, ऑफरिंग सर्टेन अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बन रेजिस्टर. There are two types of carbon resistors. हाँ, types TYPS टाइप कार्बन रेजिस्टर, यानी कार्बन रेजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। यानी कहने का या ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बन रेजिस्टर, यानी कार्बन को हटा करके आप यहां कह सकते हैं कि कार्बन रेजिस्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, ऐसे आप ले लीजिए टाइप्स ऑफ रेजिस्टर में आप ले लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट वेरिएबल रेजिस्टर, और सेकेंड को ले लीजिए आप कार्बन रेजिस्टर।
carbon register. It means register. There are two types of the register. Types of register. There are two types of the register, variable register and carbon register. Variable register is denoted by the symbol. This is the symbol of the variable register. ये डायग्राम कहीं भी आपको दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज द सिंबल ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर. इट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कंटिन्यूअस वैरी. एंड कार्बन रजिस्टर, दिस इज द सिंबल ऑफ द कार्बन रजिस्टर. कार्बन रजिस्टर मींस फिक्स्ड रेजिस्टेंस. फिक्स्ड रेजिस्टेंस. कार्बन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है. एंड वेरिएबल रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस वैरी करता है. वैरी रेजिस्टेंस. तो इन दिस वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर एंड कार्बन रजिस्टर. So you see that what is the carbon register? So carbon register is the component of the electric circuit offering certain opposition to flow of electric current into the conductor. Types of register. There are two types of the register, variable register and carbon register. So in this way we define the carbon register, and also to show the diagram of the variable register and carbon registers. Second point, how make a carbon register. How make a carbon register? It means कार्बन रजिस्टर को कैसे बनाया जाता है. How to make a carbon register? Listen. To make a carbon register with fixed resistance. To make a carbon register with fixed resistance, carbon bound with suitable material. Carbon with suitable wound material to form the carbon registers. Carbon with wound by a suitable materials and mounted into the shape of the cylinder. In both ends of the cylinder, two leads are attached, and whole system are enclosed by a plastic jacket or ceramic jacket. In this way carbon register is formed. कार्बन रजिस्टर फॉर्म यानी कार्बन रजिस्टर को फॉर्म करने के लिए कार्बन के साथ एक सुटेबल मटेरियल को मोल्ड कर देते हैं हम. मतलब दोनों को मिक्स करके हम कार्बन के साथ एक सुटेबल मटेरियल को बाउंड करके हम कार्बन रजिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं. अरे भाई किसका लाउड स्पीकर ऑन है? हेलो बोलता हूँ. आवाज आ रही है कहीं से बच्चे के रोने की? हाँ हेलो सर. हाँ सर इसको म्यूट करिए, तो बच्चा रो रहा है, इसमें कहीं से आवाज आ रही है. म्यूट करिए. देख लीजिए. अगेन हम आपको डिफाइन कर रहे हैं कि हाउ टू मेक ए कार्बन रजिस्टर. टू मेक ए कार्बन रजिस्टर विथ फिक्स रेजिस्टेंस, कार्बन बाउंड विथ suitable materials, molded in the shape of the cylinder. In both ends of the cylinder, two leads are attached, and whole system are covered with a plastic jacket or ceramic jacket.
In this way we form the carbon register. Second point, how make a carbon register. तो मैंने आपको बताया कि कार्बन रजिस्टर को आप कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे. तो कार्बन के साथ एक सुटेबल मटेरियल को बाउंड कर देते हैं, मिक्स करके हम कार्बन रजिस्टर का फॉर्मेशन करते हैं. और फॉर्मेशन करने का शेप हम कैसा देते हैं, तो सिलिंड्रिकल शेप देते हैं. और उस सिलिंड्रिकल शेप के दोनों एंड की तरफ 2 लीड्स लगा होता है. इस पूरे सिस्टम को हम कवर कर देते हैं प्लास्टिक जैकेट से या सेरामिक जैकेट से हम कवर कर देते हैं. जहां भी हमको फिक्स रेजिस्टेंस की जरूरत होती है उसके साथ हम कार्बन रजिस्टर का यूज करते हैं. यानी कार्बन रजिस्टर का यूज जनरली आप यूज कर सकते हैं रेडियो, टेलीविजन, एम्पलीफायर में हम कार्बन रजिस्टर का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर कार्बन रजिस्टर के लिए वहां पर कार्बन रजिस्टर का वैल्यू फिक्स होता है, यानी वहां फिक्स रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम कार्बन रजिस्टर यूज करते हैं. और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मोटर बाइंडिंग होता है, तो मोटर बाइंडिंग के साथ हम बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम टर्न करके बनाते हैं. तो कॉपर वायर को जब हम टर्न करके बनाते हैं मोटर बाइंडिंग के समय, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है, वेरी रेजिस्टेंस होता है, जिसको मैंने यहां पर लिखा है वेरिएबल रेजिस्टर. तो वेरिएबल रेजिस्टर मींस आप सपोज कर लीजिए कि मोटर बाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस यूज होता है, जो रेजिस्टर यूज होता है वो वेरिएबल रेजिस्टर होता है. लेकिन जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं जैसे टीवी, रेडियो, एम्पलीफायर और सब बहुत सारे एपरेटर्स है जिसमें हमें रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये फिक्स रेजिस्टेंस की जरूरत होती है. उस फिक्स रेजिस्टेंस के लिए हम जो है कार्बन रेजिस्टर का यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है. तो इस तरीके से आपने स्टडी किया कि व्हाट इज द कार्बन रजिस्टर एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर, एंड आल्सो बी एक्सप्लेन दैट हाउ मेक्स ए कार्बन रजिस्टर्स. अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हाउ बी रीड द कार्बन रजिस्टर. देखिए हमने लिखा है यहाँ पे हाउ बी रीड द वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, यानी हम कार्बन रजिस्टर के वैल्यू को कैसे रीडिंग करते हैं. इसको रीडिंग करने के लिए कलर कोड बनाया गया. कलर कोड यानी कार्बन रजिस्टर के वैल्यू को रीडिंग करने के लिए कलर कोड का फॉर्म किया गया है. इस कलर कोड को बेस मानते हुए हम कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं. तो फिर इस कलर कोड जो कार्बन रजिस्टर पर जो कलर कोडिंग की जाती है, उस कलर कोडिंग को लर्न बाय हार्ट करने के लिए आप जो है एक ये पॉइंट्स याद रखेंगे आप. बीबी राय बीबी राय हैज ग्रेट ब्रिटेन
Look at the blackboard. How we read the value of carbon register? So to read the value of carbon register, color code are indicated on the carbon register, and that color code of the carbon registers are read by this symbol. It means B.B. Rai of Great Britain has very good wife wearing gold silver necklace. ये फर्स्ट वर्ड जो लिखा गया है ये कलर का नाम है। क्योंकि कलर कोड का नाम याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए इस सिंबल की सहायता से आप कलर कोड को याद रखेंगे। जैसे बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, ये कलर कोड है जो कार्बन रजिस्टर पर कलर कर दिया जाता है, कोडिंग कर दिया जाता है, कलर कोड बना दिया जाता है। इन कलर को जिसमें कोई भी कार्बन रजिस्टर होता है उस कार्बन रजिस्टर पर एटलीस्ट 4 कलर बने होते हैं। फर्स्ट कलर शोज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट और फर्स्ट डिजिट, सेकेंड कलर शोज द सेकेंड सिग्निफिकेंट figure or second digit, and third color shows the multiplier, and fourth color shows the tolerance means कितना एक्यूरेसी है उस रजिस्टर में, जो रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस में कितना एक्यूरेसी है उसको रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस। तो इन दिस में जो कलर फॉर्म किया गया है तो ये कलर हो गया कलर। फर्स्ट कलर बैंड, सेकेंड कलर बैंड, थर्ड कलर बैंड and tolerance color black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold, silver। चलिए ठीक है, रिमार्क कर लो आप भाई। ब्लैक के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये आपको हमने नंबर लिखा, ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, ग्रे 7, व्हाइट 8। अंडरस्टैंड? लेकिन अभी दो कलर अभी हमने नीचे नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं है, जो हम ओरल बोल दे रहे हैं, आप याद रखिएगा, गोल्ड एंड सिल्वर। रियल में ये गोल्ड एंड सिल्वर टॉलरेंस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं यहां पर। ब्लैक के लिए फर्स्ट कलर बैंड के लिए नंबर हम 0 यूज करते हैं, ठीक है। ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, और वही आपका नंबर यहां भी होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड कलर बैंड जो है मल्टीप्लायर को शो करता है, जिसको लिखते हैं 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, ऐसे इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। स्पेशली हम दिखाना क्या चाहते हैं कि हाउ वी रीड द वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो कलर कोड होता है, उस कलर कोड को हम याद करने के लिए एक हम यहां पर स्टेप लिखा गया है। जिस स्टेप को अगर याद रखते हैं तो आपको ये कलर का सीक्वेंस पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस में लिखा गया है, उसके लिए क्या नंबर यूज किया गया है। जैसे आपको बताया गया कि बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी मीन्स हमने ब्लैक, बी मीन्स ब्राउन, आर मीन्स रेड, एंड ओ मीन्स ऑरेंज, and Y means yellow, G means green, B means blue, and gray. G means gray, and W means white, G means S means silver, G means gold. Gold and silver, gold and silver, gold and silver, ये both are the tolerance, both are tolerance. गोल्ड के लिए बी टेक टॉलरेंस 5% एंड बी टेक टॉलरेंस सिल्वर के लिए 10%। स्पेस नहीं है इसलिए हम सिंबल के रूप में यहां लिख दिए हैं कि अगर बाय द वे अगर सपोज कर लेते हैं कि टॉलरेंस के रूप में, टॉलरेंस के लिए गोल्ड है तो हम 5% लेंगे, सिल्वर है तो 10% लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कलर सीक्वेंस याद रखेंगे। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट कलर बैंड के लिए, सेकेंड कलर बैंड के लिए सेम नंबर, एंड थर्ड कलर बैंड के लिए इसी को हम पावर के रूप में लिखते हैं, मल्टीप्लायर जिसको कहते हैं। थर्ड कलर बैंड जो है मल्टीप्लायर को शो करता है, जिसके लिए नंबर 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 सो ऑन इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो याद रखिए कि किसी भी कार्बन रजिस्टर पर 4 आपका जो है कलर होता है। फर्स्ट कलर शोज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर और फर्स्ट डिजिट, सेकेंड कलर शोज द सेकेंड डिजिट और सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड थर्ड कलर शोज द मल्टीप्लायर, एंड फोर्थ कलर शोज द टॉलरेंस। बाय द वे, इफ फोर्थ कलर इज absent, fourth color is the absent on the carbon register, then we take the tolerance 20%. We take the tolerance 20%. सपोज कर लीजिए कि कोई आप कार्बन रजिस्टर का आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, उस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए उस पर फोर्थ कलर अब्सेंट है, तो आप डायरेक्ट टॉलरेंस लेंगे 20%। क्या लेंगे आप? टॉलरेंस 20% लेंगे। तो इस तरीके से आप कार्बन रजिस्टर को जो है उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कार्बन रजिस्टर के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल्स आपको हम दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि एक हमने कार्बन रजिस्टर लिया, ये कार्बन रजिस्टर, इस पर ये हमने कलर बैंड बना दिया 1 2 3 4, हमने 4 कलर दे दिया। चलिए फर्स्ट हमने ले लिया रेड, चलिए उसके बाद येलो ले लिया हमने, ग्रीन ले लिया, और चलिए फोर्थ कलर जो है हम आपका ले लेते हैं
सिल्वर, ये आपका 4 कलर है। मान लीजिए कि कोई आपको ये दे दिया गया कि ये कार्बन रेजिस्टर, ये कार्बन रेजिस्टर आपको दे दिया गया और कह दिया गया कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर, color code are indicated on the carbon register. So how will you find the resistance of the carbon register? So to find the resistance of carbon register, these symbols are used in your minds, and after that you can find the resistance of the carbon register. तो देखिए कैसे आप निकालोगे आप. First color shows the first digit. Second color shows the second color band shows the second digit. Third color shows the multiplier, and fourth color shows the tolerance. So how will you find the resistance? Resistance is equal to first color red. तो यू कैन यूज रेड के लिए आपने नंबर 2 यूज करेंगे, तो ये फर्स्ट आपका डिजिट नंबर हो गया. सेकेंड कलर येलो के लिए नंबर 4, तो ये सेकेंड डिजिट हो गया. जो थर्ड कलर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, तो थर्ड कलर हमने ग्रीन यूज किया है, और ग्रीन के लिए आपने नंबर क्या लिया है 5, तो इसके लिए मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 के पावर 5. तो मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 प्लस माइनस टॉलरेंस को ऐड करेंगे, तो टॉलरेंस के रूप में हमने सिल्वर लिया है, और सिल्वर के लिए आपको मैंने बताया है कि 10% टॉलरेंस लेंगे आप. जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ पर, इसको हमने ऑफ कर दिया, मिटा दिया है. गोल्ड के लिए 5% मतलब टॉलरेंस, सिल्वर के लिए 10%. तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस हम कितना लेंगे? 10% लेंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये वैल्यू होगा 24 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 प्लस माइनस 24 इंटू 10 के पावर 5 मल्टीप्लाई 10% मीन्स 10 अपॉन 100. 24 इंटू 10 के पावर 5 प्लस माइनस 24 divided by 10, then you can take 2.4 I into 10 के पावर 5. 24 divided by 10, then it converts 2.5 and multiply 10 के पावर 5. So finally you can take 24 plus minus 2.4 multiply 10 के पावर 5. You can write ohm. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. तो मान लीजिए कोई भी अगर आपको कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है, तो उस कार्बन रेजिस्टर के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उन कलर कोड को याद रखना होगा. जो कलर कोड मैंने फॉर्म किया था, जो कलर कोड बनाए हमने, वो कलर कोड अगर आप यदि मिस कर गए, तो फिर आप कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सेकेंड स्टेप ये आता है कि अगर बाय द वे किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये फोर्थ कलर आपको दिया ही नहीं है, ऑफ कर दिया गया, तो फोर्थ कलर ऑफ हो गया, तो आप डायरेक्ट टॉलरेंस की जगह पर 20% लेंगे. टॉलरेंस कितना लेंगे आप? 20%. कब लेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ फोर्थ कलर ऑफ द कार्बन रेजिस्टर यू कैन टेक द टॉलरेंस 20%. टॉलरेंस मींस एक्यूरेसी, कितना एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो शो करता है टॉलरेंस आपका. तो ये आपको बताया गया कि कार्बन रेजिस्टर क्या है, व्हाट इज द कार्बन रेजिस्टर, कैसे फॉर्म करते हैं कार्बन रेजिस्टर को, हाउ वी मेक द कार्बन रेजिस्टर. एंड आफ्टर दैट मैंने बताया कि कलर कोड ऑफ द कार्बन रेजिस्टर पर कलर कोड किया गया. एटलीस्ट 4 कलर होता है कार्बन रेजिस्टर पर. फर्स्ट कलर शोज द फर्स्ट डिजिट, सेकेंड कलर शोज द सेकेंड डिजिट, एंड थर्ड कलर शोज द मल्टीप्लायर, एंड फोर्थ कलर शोज द टॉलरेंस. इन द एब्सेंस ऑफ फोर्थ कलर you can take the tolerance 20%, or if the fourth color gold, then you can take the tolerance 5%,
and if the fourth color is the silver, then you can take the tolerance 10%, जिसको मैंने चार्ट द्वारा लिख करके आपको बताया। तो उस चार्ट को याद रखना होगा। चार्ट अगर याद नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम लगाने में डिफिकल्टी होगी। और ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर। तो आप एक दो क्वेश्चन जो है सॉल्व करके, कार्बन रजिस्टर को आप कैलकुलेट कर लीजिए घर पर। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हैं। उस कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने आपको लाइन लिखा था, उस लाइन को आप लर्न बाय हार्ट रखेंगे। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसका एक एक जो लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है वो फर्स्ट कलर को शो करता है। तो उस कलर को याद करने के लिए यह एक ट्रिक बनाया गया, जिस ट्रिक की सहायता से हम कलर को याद कर लेते हैं, लर्न बाय हार्ट कर लेते हैं। और उस कलर के लिए मैंने नंबर लिखा था, ब्लैक से स्टार्ट करते हैं और हम 0 से नंबर स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस बना लेते हैं कि 0 1 2 3 4 5 फर्स्ट डिजिट में भी एंड सेकेंड डिजिट में भी हम जो है सीक्वेंस बनाते हैं 0 1 2 3 एंड थर्ड कलर में हम उसी को मल्टीप्लायर के रूप में लेकर चले जाते हैं। तो ये आपको कार्बन रजिस्टर मैंने बताया। देखिए, कार्बन रजिस्टर के बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक साइंटिस्ट जिनका नाम जूल था, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये बताया कि वर्क एंड हीट में रिलेशंस है। उनके अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जूल सेड दैट if we do the work, then that work conserve in the form of the energy, means heat energy. According to experiment by the Joule said that we can do the work, then that work conserve into the heat. Q symbol हीट के लिए यूज किया गया। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जूल सेड दैट वी कैन डू द वर्क, देन दैट वर्क कंजर्व इनटू द हीट। ऑन द बेसिस ऑफ द experiment, Joule said that work is directly proportional to the heat. It means we can do the more work, then more heat is produced. When directly proportional change, then a constant is used by the Joule, J. That constant is called the Joule's constant. Joule constant, J is equal to W upon Q. इस J का वैल्यू साइंटिस्ट जूल ने 4.2 जूल पर कैलोरी बताया। According to scientist Joule, the value of the Joule constant 4.2 joule per calorie. Calorie is the unit of the heat and Joule is the unit of the work. Scientist Joule said that one calorie heat we can do 4.2 joule. Scientist Joule said that, according to scientist Joule said that if we have 1 calorie heat, then we can do the 4.2 joule work.
It means work conserved into the heat and heat conserved into the work. Both are related to each other. क्वेश्चन ये उठता है कि इस स्टेप को यहां हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने लिखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू ए वायर, देन ड्यू टू ऑब्स्टकल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी। It means electrical energy conserved into the heat energy. So when we convert the electrical energy into the heat energy, then Joule's formula is necessary. यानी वहां जूल का फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगा, जूल के नियम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने आपको पहले बताया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत मैंने पहले जूल के नियम को बताया कि इफ वी कैन डू द वर्क देन दैट वर्क कंजर्व इनटू द एनर्जी, हीट एनर्जी। देयरफॉर work is directly proportional to the heat. More work, more heat is produced. Then work is directly proportional to the heat. Then if we change the directly proportional into the equal, then we multiply a constant. That constant is the J. J is called the Joule's constant. J is equal to W upon Q. The value of J is given by the scientist Joule, 4.2 Joule calorie. It means if we have 1 calorie heat, then we can do the 4.2 joule work. ये स्टेप था आपका, और इसके बाद आपको हम डिराइव करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द फार्मूला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कराएंगे हम, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कंजर्व होता है, उससे रिलेटेड क्या फार्मूले आएंगे। फिर आपका जो है इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट्स क्या है। ये सारे रिलेटेड जो है आपका इससे इफेक्टिव है, जो आपको टर्म बाय टर्म एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज आपको हमने एक्सप्लेन किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए आपको मैंने बताया कि द हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू द वायर इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Yeah, in other words, you can also say that when the electric current is passing through a wire, then due to obstacle, yeah, the obstacle is produced due to flow of electric current or electric charge into the wire. The electric energy conserved into the heat energy. That is called the heating effect of electric current. इस स्टेप पर बहुत सारे अप्लायंस बने हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो बल्ब है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब भी जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर फॉर्म किया गया है। जैसे उस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक करंट उस टंगस्टन के फिलामेंट में पास करता है, तो उसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उस करंट और चार्ज को मूव करने के लिए मोर एंड मोर वर्क करना पड़ता है, और वही मोर एंड मोर वर्क कंजर्व इनटू द हीट एनर्जी। एंड ड्यू टू द हीट एनर्जी द फिलामेंट बिकम्स रेड हॉट, यानी उस बल्ब का जो फिलामेंट यानी टंगस्टन का जो बना होता है, वो बिकम्स रेड हॉट हो जाता है। और ड्यू टू बिकम्स द रेड हॉट, the light is radiate। तो आपने देखा कि there are the many appliance are formed on the basis of the heating effect of electric current। जैसे आयरन प्रेस भी आप ले सकते हैं। आयरन प्रेस के अंतर्गत भी जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक आपका करंट हीट एनर्जी में कंजर्व होता है, जिससे आपका जो है आयरन यानी इलेक्ट्रिक प्रेस जो है बिकम्स हॉट, वो हॉट हो जाता है। अभी चलिए